પોસ્ટ માસ્ટર કે એસપીએમ વિરુદ્ધ ફરિયાદની સત્ય હકીકત જાણો આ અહેવાલમાં। અખબાર એ દેશની ચોથી જાગીર ગણાય છે। લોકશાહીના આધારસ્તંભને ટકાવી રાખવા મીડિયાનો ફાળો બહુમૂલ્ય ગણાય છે, પરંતુ કેટલાક બોગસ અખબાર અને માજી પત્રકાર યેલો જર્નાલિઝમ અપનાવી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કરી રહ્યાની ઉઠેલી ફરિયાદોના પગલે સરકાર દ્વારા બોગસ અખબારો સામે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે। ઘણા માજી પત્રકાર તરીકે પોતાની ઓળખાણ આપીને સરકારી અધિકારીઓ ઉપર ખોટું દબાણ કરવાની કોશિશ કરે છે। હું માજી પત્રકાર છું, મારી કંઈક ઇમેજ છે તેવો દેખાવ વધારે કરતા હોય છે। આવા માજી પત્રકારો સરકારી અધિકારીઓ ઉપર પોતાનો રૂઆબ બતાવવાની કોશિશ કરતા હોય છે। એક માજી પત્રકારની ફરિયાદ હતી કે પોસ્ટ માસ્ટર કે એસપીએમ દ્વારા પોસ્ટ ઓફિસમાં આવતા ગ્રાહકો સાથે ગેરવર્તન અને તોછડો વર્તાવ કરવામાં આવે છે। તે પોસ્ટ માસ્ટર બપોરના સમયે 2 વખત જમવા જાય છે, આવી ઘણી બધી ફરિયાદો હતી। આ ફરિયાદના અનુસંધાને તે પોસ્ટ ઓફિસની સવારે 9:30 વાગ્યે ઓચિંતી મુલાકાત લીધી, ત્યારે એ ક્યાંય જોવા ન મળ્યા કે પોસ્ટ માસ્ટર દ્વારા કોઈ પણ ગ્રાહકોએ ગેરવર્તન કે કોઈને ખરાબ જવાબ આપ્યો ન હતો। પોસ્ટ માસ્ટર કે એસપીએમની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી અને તેની સાથે વાતચીત કરી હતી અને પોસ્ટ ઓફિસમાં પોતાના કામ માટે આવેલા તમામ ગ્રાહકોની સાથે વાત કરી હતી। દરેક ગ્રાહકનું કહેવાનું થતું હતું કે પોસ્ટ માસ્ટર દ્વારા અમને કોઈ પણ દિવસે અમારી સાથે ગેરવર્તન કે તોછડો વર્તાવ કર્યો નથી। પોસ્ટ માસ્ટર સારા માણસ છે। આ પોસ્ટ માસ્ટરની 2 દિવસમાં બદલી થઈ જશે, તેમને બદલીનો ઓર્ડર આવી ગયો છે। એટલે કોઈ માજી પત્રકાર કે પત્રકાર એમ ન માને કે અમે આ પોસ્ટ માસ્ટરની બદલી કરાવી છે। અને આવી ફરિયાદો કરનારા લોકો પોતાના સ્વાર્થ માટે આવી ફરિયાદો કરે છે તેવું લાગે છે। આ સંદર્ભે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું હતું કે અખબારો ચલાવવા માટે RNI નંબર ફરજિયાત છે, પરંતુ કેટલાક અખબારો રિન્યૂ કરાયા ન હોય તેવા વર્ષો જૂના RNI નંબરોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે અનધિકૃત ગણાય છે। આવા બિનઅધિકૃત RNI નંબરો ઉપર અખબારો ચલાવવા યોગ્ય નથી। આ માટે કેન્દ્ર સરકારે નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, જે અંતર્ગત અખબારોના માલિકોએ હવે RNI નંબર તેમજ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્ટર પ્રાંત અધિકારી પાસે વેરિફિકેશન કરવાનું ફરજિયાત કરાયું છે। અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધી અખબાર માટે RNI નંબર મેળવ્યા પછી તેના પ્રતિવર્ષ રિટર્ન ફાઇલ કરવું ફરજિયાત છે, પરંતુ કેટલાક અખબારો નીતિ નિયમોનો છેદ ઉડાડી પીળું પત્રકારત્વ અપનાવી રહ્યા હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી છે। આવા અખબારો વર્ષો જૂના RNI નંબરનો પણ ઉપયોગ કરી સરકાર અને આમ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોવાની ઉઠેલી ફરિયાદો બાદ હવે સરકાર દ્વારા વર્ષો પછી પોલિસીમાં ફેરફાર કરી અખબારોના RNI નંબર અને ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્ટર પ્રાંત અધિકારી પાસે નોંધણી કરવાનું ફરજિયાત કરી દેવામાં આવશે। રિપોર્ટર હોથીભા કેર અને કનૈયાભા કેર। આપણે આજે એસપીએમ અને પોસ્ટ માસ્ટર છે તેની સાથે અને જે લોકો અત્યારે કસ્ટમર છે તેના વિરુદ્ધ જે ફરિયાદ કરે એમ કહે છે કે કસ્ટમર જે છે એના સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવે છે। હવે શું હકીકત છે તે આપણે જે ગ્રાહકો છે, કસ્ટમર છે તેની સાથે વાત કરશું। હાલો, હમણાં સાહેબ બરાબર છે, અમે અહીંથી જવાબ આપે છે, અમને બધી આમ બધું સારું આમ લાગે છે। સાહેબ અમારે બદલી ના થવી છે, અમારી વિનંતી છે। સારી સુઝાવ આપે છે, બહુ માર્ગદર્શન સારું આપે છે, એટલે ખબર ન પડતી હોય કે આમ કરો એમ કરે, એમ સારી સજેશન આપે છે, કોઈ ફરિયાદ નથી। અમારી એ વિનંતી છે કે આ સાહેબ અમારે બદલી ના થવી છે, અમારી એ જ વિનંતી છે અમારી। નથી અહીંયા અમે પોસ્ટ ઓફિસે આવીએ તો અમને કંઈ તકલીફ નથી, સાહેબ સારા છે, એમને ને કામે અમારું થઈ જાય ને અમને જવાબ સારો દઈશ। આ પોસ્ટ માસ્ટર વિરુદ્ધ જે કંઈ ન્યૂઝમાં પત્રકારમાં કંઈ દેવામાં આવ્યું છે માજી પત્રકાર તરીકે, એ બધું ખોટું છે। આ પોસ્ટ માસ્ટર સારી રીતે કામ કરે છે। આ પોસ્ટ ઓફિસે જે માણસો આવે છે બુઝુર્ગ, એની બધીની જેને કામકાજ બરાબર કરે છે। આ પોસ્ટ માસ્ટર અહીંયા 2-3 વર્ષ હજી રહેવા જોઈએ એવી માણસોની વિનંતી છે। અમારે શર્મા સાહેબ પોસ્ટ ઓફિસમાં છે, જે આપણે કોઈ દી ખરાબ જવાબ નથી આપ્યો, સારો જવાબ આપે છે। અને 20 વર્ષથી અમે અહીંયા જ છે પોસ્ટમાં જ ખાતા બધા, અમને સરખો જવાબ આપે છે, બરાબર। એટલે સાહેબની બદલી ન થવી જોઈએ, સાહેબ બહુ સારામાં સારા છે અને વડીલો માટે તો અતિ ઉત્તમ છે, કારણ કે હિન્દી ભાષા કરે છે છતાં ગુજરાતીમાં જે આવડે સમજાવીને માણસનું સારું વર્તન કરે છે। હવે બાકી તમે આગળ બધી પૂછી જજો, સલાહ લઈ લ્યો। પણ માણસ અમને
ફૂલ સમજાવે છે અને હજી 2 વર્ષ રહે એનો આભાર અમે વિનંતી કરીએ. કેમ કોઓપરેટિવ સ્ટોર ગેસ એજન્સી છેલ્લા 60-70 વર્ષથી કાર્યરત છે અને આજ સુધી કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ તેઓની થઈ નથી અને ફરિયાદ વગર કામ કરવાનું વચન આપે છે. જે કોઈ પણ ફરિયાદ કરેલી છે તેઓએ પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે કરેલી છે. બાકી આજ સુધી કોઈ જાતની ફરિયાદ થયેલ નથી અને નિરંતર સારી સેવા કરે છે. મારું નામ જયેન્દ્રસિંહ ગુમાનસિંહ વટેર, ભીમરાણા સરપંચ. હાલમાં પોસ્ટ ઓફિસના કામ વિશેની વાત કરીએ તો પોસ્ટ ઓફિસના મેનેજર સાહેબની સારી એવી કામગીરી છે. અમારા ગામમાં રવિવારની રજા હોવા છતાં અમારા ગામમાં આવી સુકન્યા યોજનાઓના ખાતા પણ ખોલી દીધેલ છે અને હર હંમેશ ગમે ત્યારે બોલાવી ત્યારે અમને સંપર્કમાં છે અને અમારા ગામ માટે સારું એવું કામગીરી કરી અને સાહેબનું ખૂબ સરસ કામગીરી છે. જય હિન્દ, જય માતા. और साहेब ने गमे ત્યારે આવીએ છીએ સાહેબ જવાબ પણ સારી રીતે આપે છે, રિસ્પેક્ટ પણ કરે છે. માણસોને કોઈ હેરાનગતિ હવે થતી નથી. આપણે મીઠાપોર જે પોસ્ટ ઓફિસ છે એમાં જે પહેલાં જે જૂનો સ્ટાફ હતો એમાં પહેલાં બહુ ગેરવર્તન થતું, પણ અત્યારે જે નવો સ્ટાફ છે હાલમાં તેમાં સાહેબ પણ સારા છે અને સારી રીતે બધાની હેલ્પ કરે છે અને વડીલોને પણ સારી રીતે હેલ્પ કરે છે. બરાબર, એકેય વસ્તુમાં કંઈ સમજાતું ન હોય તો હિન્દીમાં ના આવડે તો ગુજરાતીમાં સમજાવે છે જેટલું આવડે એટલું. એટલે અમે તો એવું વિનંતી કરીએ છીએ કે આ સાહેબની બદલી ના થાય અને આ સાહેબ જ અહીંયા પરમનન્ટ રહીએ તો पोस्ट ऑफिस में आवा वाला ने कोई ने तकलीफ ना पड़े. मैं विक्रांत शर्मा, मीठापुर पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर. जैसा कि आजकल कुछ झूठ फैल रही है, मतलब पूरी की पूरी एक अखबार है उसमें एक पत्रकार ने झूठ फैलाया है. वो उसका एक माजी पत्रकार उसका भाई था, तो उसने अपने स्वार्थ में या किस उसमें पहले से ही प्री प्लान करके आए थे और वो बाहर से वीडियो लेके आए थे और हमने तात्कालिक उनकी हेल्प की, फिर भी वो बना रहे थे. और यहाँ पे इतना सारा काम होता है तो एक ही फ्लो में बोला जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि मैं कभी उतार कभी चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स करके मैं बात करूँगा, ऐसा तो है नहीं. मैं सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता हूँ और मेरा तो वैसे भी 1-2 दिन में यहाँ से रोटेशन आने वाला है किसी दूसरे ऑफिस में, पर यहाँ की पब्लिक चाहती है कि नहीं आप 1 साल और रहो. हम तो चाहते हैं कि आप यहीं पे रहो. इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा. और यहाँ पे जिसमें मेरा एनवायरनमेंट भी शूट नहीं करता है मेरे शरीर को, तो 2 बार तो ऑपरेशन हो चुका है. तो फिर भी कि ये है कि पब्लिक की जितनी सेवा करो उतना अच्छा है, क्योंकि पब्लिक जो अच्छे से हम काम करेंगे तो उसमें क्या होता है, इतनी सारी दुआएं देते हैं. तो वो भी कहावत है कि हाँ मतलब एक दुआ 100 बद्दुआओं पे भारी होती है. तो मैं तो दुआ ही लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना काम नहीं करता हूँ. मैं यहाँ पे जितना सोशल वेलफेयर होए उतना मैं सोशल वेलफेयर करता हूँ, जितनों की हेल्प की जाए मैं उतनी हेल्प करता हूँ. लेकिन फिर भी कोई एक माजी पत्रकार आता है, फिर बोलता है तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ. तो फिर उससे पूछते हैं तो हाँ भाई कौन हो आप, तो फिर बोलता है मैं एक माजी पत्रकार हूँ. फिर मैं बोलता हूँ कि यार माजी क्या होता है, तो फिर बोला तुझे नहीं पता है. तो मैं बोला कि मुझे नहीं पता है, गुजराती એટલું જ આવડે છે કે मैं સમજી શકું, પણ એટલું નથી આવતી કે બધી ગુજરાતી મને આવડે છે. હા, એટલી જ આવે છે કે પબ્લિકને હું કહેવી શકું કે તમને શું વાંધા છે, તમને શું કરાવવાનું છે, તમને કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે, તમારો મતલબ ક્યારે તમને આપું, કેટલા આપું, બધા એના ફોર્મ ભરી દેશું, બધા એના કામ કરી દેશું, બધાની ઓળખાણ કરાવી નાખશું. એટલી જ ગુજરાતી આવડે છે મને તો ઓફિસમાં જેટલી જરૂરત પડશે. પણ वो बोला कि તમને ખબર નથી માજી પત્રકાર શું થશે. मैं बोला कि माजी मेरे को तो नहीं खबर है, माजी पत्रकार कौन होता है आप बताइए. बोला नहीं आप अपना कोई गुजराती गाइड रख लीजिए. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अब मैं इतनी सारी तो सीख ही गया हूँ कि हाँ पब्लिक से ही सीखा हूँ कि ये गुजराती में बात करना है, क्योंकि मुझे जहाँ रहना है वहाँ का वातावरण में तो जीना होगा ना. तो मैं गुजराती भी सीख गया. और इतने सारे बड़े बुजुर्गों का और जवानों का यहाँ पे आपने वो लिया है, मतलब आपने विवरण लिया है, आपने यहाँ पे सब कुछ देखा है. तो उसमें आप देखिए ना कि
किसी की भी कोई भी फरियाद नहीं है, पर एक कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि वो क्या है, माजी पत्रकार अब वो सीएससी का काम कर रहा है, तो उसकी कुछ टपालें होती हैं, पान कार्ड होता है और कुछ होता है, वो बाई मिस्टेक रीडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो एड्रेस लिखते हैं ना वो गलत लिखते हैं, तो वो गलत जगह चला जाता है। और मेरे यहाँ पे आ गया, वो 9 तारीख को सूरज कुराड़ी में आया था उनका वो, और फिर रीडायरेक्ट होके वहाँ से मेरे पास आया, तो मैंने उसको तात्कालिक, मतलब एक बीओ में, पाडली बीओ में जाना था वो, और मैंने वहाँ से निकलवाया और बीट में डलवाया दवे भाई की, तो तात्कालिक उसका समाधान कर दिया। पर वो तो क्या था, प्री प्लान्ड था टोटली, तो वो तो प्लान करके आए थे कि लड़ना ही है, और हमें तो पता था कि ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, जब मैंने बोला ऐसे कोई पत्रकार बिना पूछे नहीं आ सकता है ऑफिस में, तो पूछ के आइए, तो और फिर ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, क्या है ऑफिस में क्या नहीं है, तो वीडियो क्यों बना रहा है वो, तो ये सब बातें हुई। फिर उसने खाम खा कुछ भी बोलता है कि हम दोपहर में 2 बार खाना खाने जाते हैं, अरे हम तो 1 बार भी खाना नहीं खाते हैं पूरे दिन में, और बोलते हैं कि मतलब पब्लिक बैठी रहती है। पब्लिक कहाँ पे बैठी रहती है, 2 बजे तक तो हमारा काउंटर चलता है, और काउंटर चलने के बाद फिर पब्लिक घर चली जाती है, तो पब्लिक को पैसा देना होता है तो बैंक से मंगाना पड़ता है, तो बैंक से फिर पैसा देते हैं। तो मैं तो हर एक टाइम यहीं पे रहता हूँ, हम तो ये नहीं, हम 9 बजे आ जाते हैं, पूरे 8:45 मतलब आ जाते हैं, 8:45 या 9 बजने में 5 मिनट हो तो हम तो आ जाते हैं, और पब्लिक का काम इतना अच्छे से करते हैं कि आप पूछो मत। और फिर मतलब फिर भी वो करते हैं कि मतलब यहाँ पे कंप्लेंट होती रहती है, लाइन लगी रहती है, अरे थोड़ा सा स्टाफ कम है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सबसे कि तुम थोड़ा सा हमारा कोऑपरेट कीजिए, उसमें थोड़ा सा हमको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वैसे तो किसी को कोई परेशानी है नहीं, कोई एक पण आदमी कोई ऐसा आवी जैसे तो एमा हूँ कांई नहीं करी सकूँ। तो हमारे विरुद्ध पता नहीं क्या क्या, मतलब मीडिया में और ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और पब्लिक में क्या क्या फैला दिया है, जिससे मेरी इमेज भी थोड़ी सी ख़राब हुई है। अब इमेज ख़राब हुई है तो अब उसका क्या किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक है वो, तो पब्लिक से आप जवाब लो ना कि मतलब ये ठीक है ना ठीक है। दूसरी बात कि इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको, और प्यार से ट्रीट करता हूँ। बोला कि तू अभी कर रहा है सबको ऐसे ट्रीट, अरे मेरा तो बोलने का स्टाइल ही इतना अच्छा लगता है सबको। सब बोलते हैं कि तुम मत जाना यहाँ से, कुछ भी करके तुम यहाँ से मत जाना, पर जाना तो होगा, क्योंकि मेरे को एटमॉस्फेयर शूट नहीं होता है। अभी 3 साल में मेरा रोटेशन आया, तो डिपार्टमेंट चाह रहा है कि आपको यहाँ से निकालेंगे, अच्छा नहीं है आपके साथ, तबीयत ख़राब रहती है। फिर भी ऐसे कोई आ जाता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और पब्लिक का आपने रिव्यू ले लिया है कि कितना अच्छा स्टाफ है यहाँ का, कितना अच्छा हेल्पफुल है, मतलब ये खरेखर खोटी बात है। अब वो वीडियो बना के आता है ऑफिस में और ऐसे कुछ भी करके चला जाता है, धमका के चला जाता है, और हम पे ऊपर वो कहता है कि मैं पत्रकार हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, अगर आप पत्रकार हो तो इतने बड़े हो नहीं कि मतलब आप परमिशन लिए बिना ना हो, क्योंकि इस ऑफिस का मालिक मैं हूँ फ़िलहाल। मैंने बोला कि बिना पूछे नहीं आ सकते। अगर हाँ हम यहाँ पे कोई भी फ्रॉड कर रहे हैं, कोई भी गलत काम चल रहा है यहाँ पे, तो आप बिना पूछे आ सकते हो, फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ हम अंदर आ सकते हैं, पत्रकार हैं। अगर मैं मना करूँ, अगर आप एकदम नक्की हो कि हाँ यहाँ पे गलत चल रहा है, कोई फ्रॉड चल रहा है, कोई और कुछ चल रहा है, तो आप आइए ज़बरदस्ती। लेकिन अगर हम जब बोलते हैं कि आ जाइए भैया, आपको क्या बयान लेना है, ये सब वो सब हमारी रजामंदी है, तो आज आ जाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो वीडियो बनाएं, वो कॉन्फिडेंशियल मामला रहता है उसका, तो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं और हिंदी भी बोलेंगे तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हम कस्टमर से ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई हिंदी में बात करो, क्योंकि गुजराती नहीं आती है। अब मेरे पास 2 बंदे हैं बिल्कुल नए फ्रेशर, अब वो कैसे काम संभाल रहे हैं। एक को तो पिछली 20 तारीख को आया, एक 31 दिसंबर को आया, इनको कितना एक्सपीरियंस है, फिर भी इनको भी सिखाना काम, साथ में भी लग के काम करना,
और जिस दिन वो आया उस दिन हमने इतना काम किया, 43 अकाउंट्स ओपन करे एंड मतलब उसमें से कितना क्लोजर भी होगा। और फिर कल भी हमने मैं इतना सारा सोशल वर्क करता हूँ, लाइक पैम्पलेट लगाता हूँ, सारे काम करता हूँ, मार्केट में सबको अपने डिपार्टमेंट के बारे में अच्छा बताता हूँ। और कल सुकन्या का एक ड्राइव था कि नेशनल लेवल पे सुकन्या के खाते खोलने थे, तो शायद मैंने अपनी डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 21 खाते खोले हैं और मेरे ऑफिस के वो 21 खाते थे और 15 खाते वैसे खोले और बाकी क्लोजर। इतना सारा काम रहता है, आजकल लोगों को अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवाना पड़ता है, ये सब अपडेट करवाना पड़ता है, तो कितनी बड़ी गर्दी थी जैसे यहाँ। तो थोड़ा सा एक तेज आवाज़ में बात करना पड़ता है, तो कोई आता है बीच में तो उसी फ्लो में एक बात ही होगी, वो बोल रहा है तेरा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, और मैं इसी फ्लो में बात कर रहा था। और ये फ्लो तो कोई गलत है नहीं, अगर आपको गलत लगे तो मेरे को बताओ, ये फ्लो तो बोलने वाला कोई गलत है नहीं। अभी 2 बंदों से नहीं 4 बंदों से एक साथ ऑर्डर दूंगा तो मैं यहाँ पे बैठा वहाँ पे ऑर्डर दूंगा इतनी दूर 4 मीटर दूर, तो मेरे को तेज ही बोलना पड़ेगा। कोई 5 मीटर दूर बैठा तो मुझे तेज ही बोलना पड़ेगा। फिर वो बीच में बोल रहा है कस्टमर वीडियो बना रहा है, हमको पता था वीडियो बना रहा है, लेकिन हम तो गलत नहीं थे ना, एक ही फ्लो में बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ कि मैं एक बार उससे एक फ्लो में बोलूँगा, उससे एक फ्लो में बोलूँगा, फिर आराम से बोलूँगा। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी से ही ऐसे बात करता हूँ और प्यार से ही बात करता हूँ। और गुजराती लोगों को, जैसे मैं भीमराणा में गया था तो वहाँ पे मुझे મને ગુજરાતી આવડે છે, તો એટલે બધાએ માણસાનો સમજાયું कि એ સ્કીમ થારે માટે સારી છે, તો એટલા બધા માણસ મારી સાથે જોડ્યા। તો ગુજરાતી તો આવડે છે, और ગુજરાતી નથી આવડતી તો હિન્દીમાં એટલા સારું સમજા શકું છું એના कि એ બંદા સમજી જશે। તો એમાં શું એક બે માણસને ના આવડે તો એમાં મારો વાંધો નથી। तो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, तो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं तो हमको देखो ऐसा कोई फर्जियात नहीं है कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमें मतलब उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हम सेंट्रल एम्प्लॉई हैं तो हमें हिंदी या इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, और वो तो हम कस्टमर से आराम से पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, हम उनकी बात समझते हैं। फिर भी हम गुजराती में ट्राई करते हैं, क्योंकि गुजराती इतनी अच्छी मीठी भाषा है। मैं खुद गुजराती पसंद करता हूँ, मैं खुद गुजराती में बात करना पसंद करता हूँ। हरियाणवी में तो मेरा मुंह दुखता है, हिंदी में मुंह दिखता है, पण गुजराती में मुंह નથી દુખે। मतलब એટલી બધી સારું છે कि હોઠના અને જીભના उपयोग तो कम થશે। तो मेरे को तो सीखना है और अच्छी लगती है मेरे को गुजराती। मैं कहाँ पे अपमान किया गुजराती भाषा का, मैं गुजरात में रह रहा हूँ, मेरे को तो अच्छी लग रही है, इसलिए तो मैं सीख गया हूँ। सब बोलते हैं ऐसा क्या है तू इतनी सारी गुजराती सीख गया है, तो मतलब अच्छी लगती है। और कस्टमर आते हैं मेरे को सिखा के जाते हैं, एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक मतलब बंधु भाई की तौर पे, कैसे भी सिखा के जाते हैं। और तो मैंने कोई क्लास थोड़ी ना ले रखी है, तो फिर भी सीख लिया है मैंने इतना सारा, तो 70% तो। और मेरे को तो एक और पंजाबी और सीखनी है, वो भी इतनी अच्छी है। तो मैं तो लैंग्वेज सीखता हूँ, और ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ एक आधा वर्ड आता है, जो नया वर्ड आता है तो वो तो जैसे माझी पत्रकार, मेरे को क्या पता माझी पत्रकार क्या होता है, माझी पत्रकार क्या होता है मेरे को थोड़ी ना पता है इसमें। तो ये सारे जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे खरेखर एकदम खोटे छे। तो इतनी विनती करूँ छूँ तुम्हारी थी कि जो ये झूठ फैला रखा है कि 2 टाइम खाना खाने जाता है, अरे 2 घंटे में कोई 2 टाइम खाना खाने जा सकता है क्या? हम तो खाना, हमारा ये खाना होता है, हम तो टिफ़िन में लाते हैं, दिखाओ इनको, ये हमारा खाना होता है। और ये तो एक आधी बार खाया भी नहीं जाता है, और खाते हैं तो बस कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे जब टाइम लगता है। स्टाफ कम है यार, हम समझते हैं, फिर भी पब्लिक की इतनी सेवा करते हैं कि पूछो मत। उसको हम एक जॉब के तौर पे नहीं करते हैं, उसको एक सेवा के तौर पे करते हैं, और हमें मज़ा आता है, ऐसे हमें सुकून मिलता है। और लोगों को आशीर्वाद चाहिए, ना कि हमें बुद्ध दुआएं चाहिए किसी की। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।